ویکتی غیر مسلمان وہ کام اس نے کیا. عام طور پر ہوتا یہی ہے سیاست کے اندر کہ ایک آدمی سے کام کراتے ہیں جس کو موہرا کہتے ہیں, اور موہرے کی بہت بڑی اہمیت ہے سیاست کے اندر. پورا شطرنج کی جو وکاس ہے وہی ہماری سیاست ہوتی ہے. راجا آپ کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے یا پھر اس کو آگے پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے, اور جو موہرے ہوتے ہیں وہ موہروں کو صرف استعمال کیا جاتا ہے. اور جیسے وہ موہرا کسی گھوڑے کو مارتا ہے, وہ پیادہ کسی گھوڑے کو مارتا ہے یا کسی ہاتھی کو مارتا ہے, تو وہ ہاتھی کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ ہاتھی کو مارتا ہے اور دوسری طرف اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور پیادہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہی کوشش گجرات کے اندر مسلمانوں کی ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو استعمال میں لایا اور پھر اپنی کرسی کو حاصل کیا. پھر اس کے بعد وہی مسلمانوں کو ختم کیا کہ یہ سیاسی موہرے ہیں اور سیاسی پیادہ ہے, ان کو ختم کیا جائے. اور وہی پوری سازشیں کرناٹک کے اندر چل رہی ہے اور کرناٹک کے اندر سرگرم ہے. یہ لوگ کیا جانتے ہیں کہ ان کو نہ شیرو ہوٹل سے آگے بڑھنے کی ہمت ہے اور نہ منگال پیٹ سے آگے نکلنے کی ہمت ہے. نہ یہ کسی جلسے میں جاتے ہیں, نہ یہ کسی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, نہ یہ کسی IAS آفیسر سے ملتے ہیں. یہ صرف الیکشن کے موقع پر چند مفاد پرست جو سیاست دان ان کے در پر آ جاتے ہیں پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سیاست دان ہیں, ہم نے بہت اچھا کارنامہ کیا ہے. یہ لوگ کیا جانتے ہیں سیاست کی ABCD جانتے نہیں ہے. میرا دادا اس وقت سیاح کے وقت تھا جس نے چنپٹن کے اندر سیاست کی تھی. آج اسی کا خون میرے اندر ہے اور اللہ کے فضل سے اتنی سمجھ بوجھتی ہے کہ کون سے موقع پر کس کے ساتھ بات اور کیسی بات کرنی چاہیے اور سیاست میں کہاں تک جانا اور کہاں رکنا چاہیے. ان لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے. ان کی نظریں صرف 50-500 کے نوٹوں کے اوپر ہے کہ 25-30 ہزار روپے دے کر ان کو کوئی بھی خرید سکتا ہے. اس مرتبہ یہ اس امیدوار کو بکے ہیں, آئندہ آپ دوسرا امیدوار ان کو خرید سکتا ہے. خریدنے کا یہ دکان کھل چکی ہے, اگر دکان بند نہیں ہوگی اور یہ بند بھی نہیں کرنا چاہیں گے اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کاش ہو جائے, کاش کے یہ حکومت گر جائے, پھر الیکشن آ جائے, پھر ہماری چاندی ہو جائے تاکہ ہم پھر سے اپنے ان کے پیسوں کو بٹوریں اور پھر ہم اپنے ایمان کو اپنے عقیدے کو بیچیں. آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ جو کام مجھے نہ یوگیشور سے کوئی دشمنی ہے اور نہ اس کے سیاسی عروج سے, اللہ کا فضل ہے کہ ہم جہاں سے گئے ہیں ہمیں عزت ملی. ایک زمانے میں یہی یوگیشور یہ کہتا تھا نیویدن گرو ہے, فون کر کے جب بھی بات ہوتی تھی وہ یہی کہتا کہ سورج میرے گرو ہے, انہیں سے میں بات کر پوچھ کے میں کام کرتا ہوں. ہر چیز کے اندر اس نے مسئلہ چھوڑے لیے ہیں اور جب سے یہ اس جماعت کو چھوڑ کر جب سے BJP میں داخل ہوا ہے اس وقت میرا اور اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کے بعد سے کوئی اس سے کانٹیکٹ نہیں ہے. صرف الیکشن کے ایک دن پہلے رات میں 9:30 بجے اس نے فون کیا تھا کہ آپ مکہ گئے ہوئے تھے اور میں آنا چاہ رہا تھا, تو میں نے کہا کہ نہیں آئے, بہت اچھا ہوا, اب بتاؤ کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ کچھ کیجیے. تو میں کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. اتنا کہہ کر میں فون کو بند کر دیا اور صرف اتنی بات میں درمیان کر دی. اور ان کے اطراف کے جو ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے سب نے مل کر خود اپنے اطراف گڑا کھودا ہے, انہوں نے بہت کوشش کی کہ مجھ سے اس کو ملایا جائے اور مجھ سے بات چیت کرائی جائے اور مجھے بھی خریدنے کی کوشش کی گئی اور مجھے بھی یہ سوچا کہ بتا یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا بھاؤ ذرا بڑا زیادہ ہے, 50-1 لاکھ لے گا اور اس کو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے اور اس طرح سے آفر بھی آئے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پر میں 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں نے ادا کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی بدلا بھی سمجھایا. اب جو آنے والا عذاب ہے ان مرشدوں کی دین ہے جنہوں نے یہ کہا کہ میری دعا تیرے ساتھ ہے اور میرا پہلا ووٹ تیرے ساتھ ہے. اور پہلا ووٹ ان کا کہاں پر تھا یہ ہمیں چمبڑ میں بات چکے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی, سوچنے کا مادہ دیا. جس انسان کے دل میں اللہ کی وحدانیت کا یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی وہ انسان دنیا کے اندر تھکے کھاتا ہے اور اسی طرح سے حرام کے پیسے سے اپنی جیب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھی دلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی دلیل کرتا ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, 2 آدمیوں کو آپ بلاتے ہیں, ایک آدمی کو بریانی کا خواب رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم کھا, اور دوسرے آدمی کو کہتے ہیں کہ جا وہاں پر کیچڑ پڑا ہوا ہے وہ کھا لے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی عزت ہو گئی ہے, اس کی رسوائی نہیں ہوئی ہے اور اس کو آپ نے عزت دی ہے, اس کو رسوا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بریانی کے خواب دیتے ہیں اور جو اللہ
अल्लाह के करीब नहीं होता। अल्लाह ताला उसको ऐसे ही पैसे पहुंचाते हैं जो हराम तरीके से आते हैं, हराम के और शराब के पैसे होते हैं, उन्हीं में इनके पेट भरते हैं और इनके पेट टेंशन हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के रोज जब जहन्नम में लोगों को डाला जाएगा तो वहां पर पत्थरों और इंसानों को ईंधन बनाया जाएगा, कोयले बनाया जाएगा, इन्हें आग की लकड़ी के तौर पर इंसानों को इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह से लकड़ियां डालकर और आग को दहकाते हैं, उसी तरह से क़यामत में जहन्नम में पत्थरों को और फिर इंसानों को डालकर दहकाया जाएगा और आग को बनाया जाएगा। और जो हराम का माल खाते हैं अल्लाह ताला उनको क़यामत के रोज जहन्नम का ईंधन बनाने वाले लोगों के अंदर कमी नहीं है, क्योंकि इसको मालूम है इन्होंने ये समझा कि ये उम्र को गया हुआ है, आने के बाद हो सकता है कि ये साथ दे दे, योगेश का साथ दे जाए तो हो सकता है कि इसका बोलबाला हो जाएगा। इससे पहले चलो हमें बात माने, उससे पहले सियासी काम में करके गया, आपको बताता हूँ मैं सियासी काम में करके गया जिसका नतीजा है मैंने जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होने को भी 8 दिन से बेंगलुरु के अंदर एक मीटिंग हुई हमारी आधा सकती, जिसमें पता चला कि चनपटन में 15 तारीख को इलेक्शन होने का डिक्लेरेशन आने वाला है और उस मौके पर फला उम्मीदवार होगी, फला पार्टी से और फला पार्टी। उसमें ये थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है इस दल का उम्मीदवार। मैं 80 लोगों की बात सामने आ गई और फिर कुछ हमारी बातें भी हम करा गए। आते मैंने यहाँ पर चंद लोगों के अंदर हमारे पास बहुत से लोग हैं जिनको स्पीकर का नाम किया है मैंने। यहाँ से हम बोल रहे थे तो वहां से बज रहा है, यहाँ से अगर बोलते हैं तो बाहर जाकर बजता है मदीना चौक में शेरू होटल के पास ताजमहल के पास। मैंने कहा कि मस्जिद का काम है, मदरसे का भी काम है, मेरा ट्रस्ट भी है। मैं दल वालों को साथ दिया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस वालों को साथ दिया, लोग भी कुछ भी नहीं करें। अब जब कुछ लोग जाकर बेंगलुरु के अंदर बात करना, अब जो हुकूमत है मुझे क्या नहीं करना तो काम हो, उसके पास जाकर क्या बात करी है। ये बार के इलेक्शन में ये वादे पर सब मेरी सियासत है, एक वादे पर कि वो हमारे ट्रस्ट का काम, मदरसे का काम, मस्जिद का काम कराएंगे, इस देश पर खुलकर जनता रखाएंगे इंशाअल्लाह। जो उम्मीदवार इस बात को मानेगा हम बाहर जनता रखेंगे, हमारी जमात की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, और हम हर जगह पर सेंट्रल मुस्लिम मीडिया फाउंडेशन के जरिए से उस उम्मीदवार के अपने पूरे जनपद ही नहीं बल्कि पूरे स्थानीयों में खेलों में जाकर हम चर्चा करेंगे और उसके तारीफ में मैं 2 बजे तस्वीर करूंगा। मैंने ऐसा कहा कहने के बाद अल्लाह ताला से मैंने माफी मांगी, अल्लाह मैं क्या चल रहा हूँ सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि मैं काला कौन बुरा कौन। मैं इतना बोलकर जो है 5 दिन के बाद मैं उम्र को जाना पर चला है। जाने के बाद वहाँ पर जैसा सबके हैं वैसे मेरे भी कुछ लोग हैं, मैंने उनसे बातचीत की, गंगम के लोगों से बातचीत की, चल रहा था इलेक्शन का डिक्लेरेशन आया। फिर मुझे ही में सामने मुझे पता चला कि योगेश्वर पूरे मशायखों से मिलने गया है और मशायखीन ने इसे अपनी तारीफ का यकीन दिलाया है। मैंने उसी वक्त अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह मेरी सियासत कामयाब हो गई, मैं बच गया। क्या इसको सियासत कहते हैं? इसमें करना कुछ नहीं, सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाना है कि मैं ये काम करने वाला हूँ, इससे बर्तन उठा लेंगे। पहलवान था, बड़े को पानी ट्रेन में जा रहे सामने दूसरा सामने बैठे ताकि पहलवान पकड़ रहा है, सामने आओ तो मुझे दिखा रहा है, वो पकड़ मांगा ये करना सामने ले आया तुम सामने बैठे तो आवाज लगी, अभी को गुस्सा आया, मैं मार नहीं सकता, ये मारा भी खाना, क्या करना है उसको अकेला चढ़ा को चैन से चैन प्रेम रुकने की के रुक जाती है, पहले रुकता है और फौरन रुक जाती है, तो ऊपर जो है खींच के
पसीने जैसा है, पसीना आ गया था झटको, आपने इसकी पसंद है इससे क्यों आना, क्यों दो हाथ लगा इससे कुछ नहीं हुआ। परवर में तो देखा था क्या मंजिल कैसे गया यार उसकी चैन बिल्कुल पाया सीधा पुलिस गई अंदर पकड़ ली, चार गाड़ी उसे दिया बोले पर गाड़ी जब वो फ्रेंड हो गया उसके बाद देते हैं पहलवान वो सियासत की मेरी चैन खींचने की मेरे एक्टिंग में भी गया और ये लोग चैन खींच लिए इनके पास 25,000 रुपये बहुत है और अल्लाह ताला की तरफ से उसको आई ना भी हो, अल्लाह ताला इसे माफ करे और ऐसे लोगों से कौन को बचाए जो कौन को कहते हैं। आप वोट किसी को भी दें, योगेश को ना दें उसका कोई मसला नहीं है, आपकी नीयत कुछ होती है मेरी नीयत कुछ और होती है, लेकिन कम से कम हालात पर नजर तो नहीं चाहिए। सिर्फ अपने जाति मफाद के लिए, सिर्फ अपने खास के पर्सनल मामले को दबाने के लिए इन लोगों ने उसका साथ दिया और इसके पीछे भी कुछ लोग हैं और जो सब कह थे तो हमाम में नहीं तो गई उनकी ये गया तो सब गए क्या करना सोच के नहीं, हम से कम बचेंगे। हमारे जो जितने भी कोला थे, हमारे जो घोटाले थे, हमारे जो स्कैंडल थे, सबके सब जाएंगे अगर लिया है। बड़ा सबने कोशिश की है वो उनके सियासी जाने हैं, अगर तो उनके महसूस फरमाए, लेकिन बताने का मतलब ये है कि आज दुनिया के अंदर अगर कोई मुसलमान बनकर जीना चाहता है तो दो चीजें उसके होनी चाहिए, एक अल्लाह की वहदानियत का यकीन और दूसरा अच्छी मोहब्बत। ये दो चीजों का सहारा ये है कि हम उसी बात की तरफ नजर उठाएं जो कुरान और हदीस कहती है और उस बात की तरफ नजर न उठाएं जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। खलीफुल्लाह अलैहिस्सलाम ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया, मज़हब माँ किताब मैंने हमारा मज़हब अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है और उसी बात पर चलते हुए खलीफुल्लाह ने अपनी जिंदगी पूरी की और हमको भी वही हुक्म किया है। और आज चल ऐसे ना आखिरत अंदेश लोग हैं जो चाहते ये है कि इस चीज को मत करके मसजिद को खत्म करके अपनी जात को करने की कोशिश की जाती है। कल हैदराबाद से वापसी हुई, हैदराबाद जो मैं गया था तो वहाँ पर इस्लामिक अकेडमी के सेक्रेटरी से एक मीटिंग थी और दूसरी मीटिंग रसूलुल्लाह बोर्ड के सेक्रेटरी से थी और तीसरी मीटिंग दारुल हैदराबाद में थी जो वहाँ का बहुत बड़ा एक मदरसा है और वहाँ के रहने के लिए संस्था ही कहा कि रसूलुल्लाह बोर्ड के मेंबर भी हैं, दिल्ली कौंसिल के मेंबर भी हैं और उसके मुख्तलिफ हैं, तो उनके साथ एक मीटिंग थी। तो एक मीटिंग जब जैसे खत्म हुई तो जैसे वहाँ पहुँचा वहाँ पे एक ऐलान और था कि मार्गदर्शक का बैठक किया जाए, लोगों को मिलने से रोक रहे थे। तो मैंने 2 दिन ऐसे गुजारे, तीसरे दिन 3 दिन से मुझे मिलना था और मुझे जो करना था और तीसरे दिन मैंने पूरा काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम हुआ है कि बहुत सी चीज़ों पर पर्दा भी उठा कि कानपुर के मौके पर हमने एक दावत दी थी हज़रत सैयद हसन शाह नदवी कानपुर के बाद उसको मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कानपुर ठीक से मैं बेचैन हूँ, आपसे मुलाकात के लिए बहुत अच्छा हुआ हमारा। तो उन्होंने कहा कि हमने रिजर्वेशन भी कर लिया था कानपुर पाने का, मैं और मेरे 2 साथियों ने ट्रेन का रिजर्वेशन भी हो गया था। इतने में चंडपटन से हमारे खलीफ थे मशाइख अब्दुल हरी और मशाइख सजुल्लाह सिद्दीक, इस दोनों का मुझे फोन आया कि आप अगर आएंगे तो चंडपटन में फंसा हो जाएगा और अगर आप आएंगे तो हम आपसे मिलने के लिए नहीं आएंगे, आप कहीं इसको बेहतरीन न समझे, इसलिए हम माफी चाहते हैं। तो मैंने सोचा, उन्होंने कहा कि मेरे बीपी का मरीज, शुगर का पेशेंट, हार्ट पेशेंट और मेरी उम्र जो है 30 के करीब हो गई है, तो मेरी अच्छी खराब हो गई है, तो इतना ज़्यादा मेरी कमजोरी है और मुझे खुद एक कैसा महसूस हुआ कि मेरे ब्याह में होने वाला है, इसीलिए मैं रुके। तो मैंने कहा कि ठीक है आप ले आए, सिर्फ सिवाय आपके सबसे शिरकत और 6,500-7 हज़ार के करीब अवाम ने उसके अंदर शिरकत की, तो एकदम मुझे इतने अफराद थे
बाद में पता चला कि सबने बैठा किया था। बोला कि जो साहिबा जो हिदायत और साहिबा पगड़ी है इन्होंने बैकाट किया और सिर्फ यही घर में थे। एक दफा ऐसा हुआ है कि उनके बच्चे भी हमारे जलसे में शिरकत कर रहे थे, बाहर बैठे हुए थे, कोई छुप के सुन रहा था और कोई पीछे सुन रहा था, लेकिन सिवाय इन 22 के सारे कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक रहे। चंद पर्वत का बच्चा उसके अंदर शरीक था। सिर्फ उन लोगों के जिनके दिल या तो सख्त है या तो जिनके अंदर यहूदियों की चारों चक्र पे है, ऐसे लोगों को छोड़कर सारे के सारे कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और सबने कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया। और हमारी ये तारीफ कॉन्फ्रेंस में हम मुझे अफसोस किए है कि मैं उसमें आपको बनाना चाह रहा था और आपको भी उसके अंदर उसका एक हिस्सा बनाना चाह रहा था। मुझे सिर्फ इतना अफसोस हुआ कि आप नहीं आए, वरना आपके नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे उसके बारे में बहुत मशहूर है कि आप मजहब छोड़ दिए। तो मैंने कहा कि जो पीछे रहता है वो सामने नहीं आता, सामने वो नहीं आता। मैं 6 साल से बता रहा हूँ लोगों को, अगर आपको कोई शुबा है तो आप आगे बात कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये मैसेज पास किया कि आपके पास मौका है, आप बाइक से बाइक मिलकर आए और आकर साबित कर दें कि ये गलत है और हम सही है। आपके बाइक की आवाज में मीडियम की आवाज बन जाएगी और आप पावरफुल है, ताकतवर है, आप उस ताकत का मुजाहरा करते हुए मुझे रोक कर चले जाए। लेकिन ये लोग नामर्द हैं, इन लोगों ने कभी मेरी दावत कबूल नहीं की और आज तक मैंने ये नहीं कहा कि मैं फलान के साथ तकलीफ में नहीं आऊंगा, फलान की सदारत में नहीं आऊंगा, फलान के जलसे में नहीं आऊंगा। लेकिन इन लोगों ने, इनके अंदर बड़ा बड़ा उलमा है और ये क्या हर एक को काम है कि मैं कौन कर रहा हूँ, लेकिन उसने ये कहा है कि अगर वो है तो मैं नहीं आता, शेर की मौजूदगी में किधर नहीं आ सकता। ये बात अच्छी तरह से पता है, यही बात हुई थी। आज ये लोग आते नहीं है, सामने नहीं आते हैं और सामने को बुलाना मैंने छोड़ भी दिया है और अब मुझे कोई परवाह नहीं है, अब मैं इनकी कोई जरूरत है और इनके आने और जाने से कोई फर्क मुझे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने जो मैसेज देना था वो मैसेज दे चुका हूँ और मेरा पैगाम कौम तक पहुँच चुका है और फिर कौम के अलावा बैरूनी अपराध में पहुँच चुका है। तमाम हिंदुस्तान के अंदर मेरा मैसेज लोगों ने पढ़ लिया है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये आते हैं या जाते हैं। अगर मैंने इनको निकाला है, ये मुझे नहीं बल्कि मैंने इज्मा को निकाला है अपने दायरे से, क्योंकि ये लोग महदवियत पर कायम नहीं है। महदवियत की पगड़ी लेकर ये महदवियत को खत्म करने वाले हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमने कहा कि आपके ऊपर एक जिंदा भी है कि आप भारत नहीं करते। मैंने उनको पूछा क्या भारत कितनी करते हैं? मेरे ससुराल की जो बयान होती है कितनी दफा? एक दफा, 2 दफा, 2 बार, एक चटपटन में एक लहंगे में।